ये बातें आपको देखनी है, संसार की बातें कैसी होती है और परमेश्वर की बातें कैसी होती You है। need to understand the word of the world and the words of संसार के Jesus. लोग आपको शरीर में चलना सिखाएंगे, The people of the world will make you live in the body. एक परमेश्वर का जन आपको परमेश्वर के मार्ग पे चलाएगा। And the righteous person will lead you into the path of the God. और हम होते धर्मी हैं We are righteous, और चलना संसार की तरीके से चल रहे, but want to copy the ways of the world. और समझ नहीं आता इधर का चलूं इधर चलूं। And we do not know I walk here or there. युद्ध तेज होते जाते हैं। The battle is fierce now. मैं आपको सच बता रही हूँ, I want to tell you now, आप परमेश्वर के साथ with the Lord, शरीर में नहीं चल सकते। you cannot walk in flesh. आपकी लाइफ में कभी पीस नहीं रहेगी। There will be no peace in your life. अगर आप धर्मी हैं, If you are righteous, हर दिन के लिए आपका भरोसा परमेश्वर पे होगा। every day you will put your trust in the हर Lord. बात में आप परमेश्वर को आगे रखेंगे। In everything you will हर put बात में आप God in front. परमेश्वर की प्रसन्नता को देखेंगे In everything you will please the Lord. और आपके अंदर एक गहरी शांति होगी। And there will be peace in your और life. परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपका आदर सम्मान प्रेम बढ़ाता जाएगा। And God will increase you. आज परमेश्वर चाहता है Today the Lord wants कि आपके जीवन में प्रभु that in your life the पहला Lord स्थान पाए। becomes priority. एक धर्मी व्यक्ति, A righteous person. वो धर्मी क्यों है? Why a righteous person is righteous? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर है। Because in his life there is the Lord. और जिसके जीवन में परमेश्वर है, And in whose life there is the Lord, वो धर्मी व्यक्ति है। he is a righteous person. और दूसरा धनी व्यक्ति के विषय में, And the second about a rich man. धनी व्यक्ति धनवान तो है, The rich person is rich on the outside, पर उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। but he does not have the Lord. आज परमेश्वर ने इन दो चीजों के विषय में बात की, God, the Lord talked about these two things, एक धर्मी व्यक्ति a righteous person और एक धनी व्यक्ति। and a rich person. इन दोनों का भेद परमेश्वर ने बात की। And about the difference between them God talked. धर्मी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर है In the life of a righteous there is a Lord. और केवल धनी व्यक्ति है And only the rich person is और there उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। and there is no Lord. आप जानते हैं उसके जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है, He has no protection, लेकिन इसके जीवन में सुरक्षा का हाथ है। but there is Lord's protection. एक धर्मी In के righteous साथ person. परमेश्वर के वायदे हैं With righteous person there are the promises of the Lord. और एक धनी व्यक्ति के साथ परमेश्वर का कोई वायदा नहीं है। But with a rich person there is no promise of the Lord. धन होना बुरी बात नहीं है, Having money is not wrong, लेकिन धन को अपना परमेश्वर बना लेना but making the money your Lord ये प्रॉब्लम है। is a problem. जब हम लाजर और धनी व्यक्ति बात करते हैं, And when we hear about Lazarus and the rich man, लाजर एक गरीब व्यक्ति था, Lazarus, he was a poor man. उसकी लाइफ में कोई भी दुनियावी ब्लेसिंग नहीं थी He had no worldly blessing in his life. और जिस घर में वो रहता था, And in which house he stayed, जिस घर के बाहर वो रहता था, outside which house he stayed. लूका 16 में उसके विषय में लिखा In है। Luke 16 it is written. पर वो धनी व्यक्ति के जीवन में दुनिया की हर ऐशो आराम था, There was every good pleasure in the life of the rich man. लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर नहीं था। But he had not the Lord. उसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था। He had no fear of the Lord. उसके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि नहीं He थी। had no wisdom of the Lord. लेकिन लाजर परमेश्वर के भय में चल रहा था। But Lazarus, he was walking in the fear of the Lord. एक धर्मी व्यक्ति और एक धनी व्यक्ति, A righteous person and a rich person. आज आपको जानना होगा, Today you have to seek and remember. क्योंकि शैतान आज इसी धोखे में लोगों को लेके जा रहा The है devil today in this
deceivement he's taking the कि people, धर्मी होना that being righteous मतलब धनी होना, is being blessed, being with richness. और हम सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास बहुत धन नहीं है And we think if there is no money with us, तो मैं ब्लेस्ड नहीं हूं। we are not blessed. समझ आ रही है? ऐसा कितने लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास बहुत धन नहीं है तो मैं ब्लेस्ड नहीं हूं या मैं धर्मी नहीं हूं। क्या धर्मी होना धन के साथ होता है? नहीं। क्यों? उस एक राइट एग्जाम्पल हम लाजर को देख सकते हैं, We have जिसके the पास कोई भी धन नहीं था, example of Lazarus who had वो खाने के लिए भी किसी पे निर्भर था, for food also he was dependent on somebody, लेकिन फिर भी वो धर्मी था। but still he was a righteous person. आज एक कलीसिया की एक गलत सोच जो शैतान बना रहा है, Today the wrong mentality that is getting in अगर church, तेरे पास दुनियावी ब्लेसिंग नहीं if है, you do not have the worldly blessings, तू धर्मी नहीं है, you are not righteous. परमेश्वर तुझसे खुश नहीं है, God is not pleased with you. परमेश्वर को तेरी सुधि नहीं है। God does not remember you. ये बिल्कुल शैतान का झूठ है। This is the lie of the devil. पौलुस धर्मी था, Was Paul righteous? पौलुस के पास कुछ था संसार का? Did he have any worldly blessings? बताइए, नहीं। पतरस के पास कुछ था, Did Peter have anything? जॉन के पास कुछ था, Did John? पर जॉन को गरम तेल भी जला नहीं सका। But even the hot boiling oil could not burn John. पतमुस टापू पर जहां पर जंगली जानवर थे और अकेला जॉन था, On the Patmos island where John was alone, तो भी वो ना भूख से मरा और ना जानवरों के द्वारा मरा। so he did not die even out of hunger and out of wild animals. धर्मी था और परमेश्वर ने उसे जीवित स्वर्ग में उठा लिया। He was righteous and he was taken up with the Lord. वो आत्मा में स्वर्ग में उठा लिया गया। Enoch was taken up to the Lord. धर्मी होना Being righteous और धनी होना, and being rich, आज इसका डिफरेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। we need to understand the difference. बहुत सारे लोगों को लगता है Many people think कि अगर मेरे पास बहुत धन है that if I have too much of money, तो मैं प्रभु के द्वारा ब्लेस्ड हूँ। only then I can be blessed. लेकिन परमेश्वर वो ब्लेसिंग को, वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो धन को देखकर आपसे प्रेम नहीं करता, Look at the blessing and love you. और ना वो होने से आप धर्मी और अधर्मी बनते हैं। And neither you become righteous and unfaithful according to it. लाजर परमेश्वर की नजर में धर्मी था। Lazarus was righteous in front of the Lord. जब वो दोनों मरे, When both died, देखो, एक धर्मी और अधर्मी दोनों की जो मौत में कोई डिफरेंस नहीं है। there is no difference in death of a rich person दोनों ही and मरते a हैं। poor person. Both die. दोनों ही मरते हैं, Both die. हाँ कि ना? हाँ, मौत कोई पक्षपात नहीं करती, There is no partiality करती है क्या? with death. ये धर्मी है, इसको आराम से मारना है। नहीं नहीं नहीं, ये अमीर है तो इसको आराम से मारना है, और ये गरीब है तो ये सड़कें मारेगा। हाँ, ऐसा नहीं, मौत आ जाती है, No अचानक आ difference. जाती है, Death comes किसी sometimes को भी आ suddenly. जाती है। With whom? वो ये नहीं देखती Anybody. ये धर्मी, ये धनी है या ये कोई बड़े ओहदे पे बैठा है या कोई ये नामी ग्रामी, वो आ जाती है। Is no matter you are rich, you are famous, the death comes to all. हालेलुया। Hallelujah. तो जब लाजर मरा, When Lazarus died, थोड़े दिनों बाद धनी व्यक्ति भी मरा, after some time, even the rich man died. और जब लाजर मरा वो कहाँ गया? When Lazarus died, where did he go? बाइबल बताती है वो स्वर्ग लोक में इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया। The word says he was in the bosom of Abraham in और the जब वो heaven. धनी व्यक्ति मरा वो नरक की आग में पहुंचाया And when गया। the rich man died, he was in the lake of fire. एक धर्मी व्यक्ति की लाइफ परमेश्वर के लिए होती है, A righteous person's life is the Lord, और एक धनी की लाइफ केवल अपने लिए होती है। but a rich person's life is for himself एक only. धर्मी व्यक्ति वो सबके लिए सोचता है, A righteous person thinks about all. एक धनवान व्यक्ति केवल अपने विषय में सोचता A है। rich person thinks about himself only. आज आपको जानना है, Today you have to remember, हो सकता है इस दुनिया में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ना हो, can be you have no blessing of the world. हो सकता है बहुत सारे स्ट्रगल आपकी लाइफ में You हो, have many struggles.
बहुत सारे तूफान आपकी जिंदगी में चल रहे You हो, have many of the winds. तो भी आप परमेश्वर की नजर में धर्मी और But Hallelujah. still खूबसूरत you हो are सकते हैं। righteous in the sight of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है The word says, किसी मनुष्य का जीवन the life of man धन की बहुतायत से नहीं होता, is not with riches of the world, और जो धनी होना चाहते हैं but who want to become वो rich, अपने आप को नाना प्रकार की प्रॉब्लम में फंसा लेते हैं they take them into various schemes of the world और विनाश के समुद्र में डुबो देते and हैं। are destroyed in the sea of destruction. आप दो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, You cannot serve two masters. या तो आप परमेश्वर की सेवा करोगे, It will be the Lord, परमेश्वर के लिए जियोगे, you live for the Lord, या आप धन के लिए जियोगे, or it will be for the money, धन की पूजा करोगे, or you will serve the धन money, कमाने के लिए अपना समय दोगे, or you will go give your अपना life to the. ध्यान भी केवल धन कमाने में, You will put your mind on that money, या आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा। but you put your heart to the Lord. एक धर्मी का ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहता The है, righteous person's heart is to the Lord. वो ये सोचता है कि परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो He जाए, thinks how to please the Lord. परमेश्वर मेरी लाइफ से उदास ना हो The जाए। Lord should not be वो displayed by अपने money. हर काम में ये ध्यान रखता है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहे। He always thinks that God should be pleased with my life. और एक धनवान व्यक्ति 24 घंटे मुझे कितना मुनाफा होना उसमें दिमाग लगा रहता And the है, rich person always thinks about the profit he is going to कहाँ have. से पैसा आएगा। From where money will come. 24 घंटे उसका ध्यान एक ऐसे स्वामी की ओर लगा रहता है जो समय आने पर उड़ जाता है, 24 hours his mind is on a और master who जो will fly किसी भी away काम नहीं आता व्यक्ति के। and who will have no. आज help to हमें जानना है, So we need to know. हमें धनवान होने की दौड़ में नहीं दौड़ना, We do not have to run in the race हमें to become धर्मी rich बने of रहने the की world. दौड़ में रहना We है। have to be in the Hallelujah. walk of becoming righteous. जब रैप्चर होगा तो धनवान नहीं उठाए जाएंगे, When rapture happens, it's not the rich people, धर्मी उठाए जाएंगे। but the righteous that will be तो taken up. आपका ध्यान धर्मी बने रहने में लगा रहना है, Your mind should be a righteous life. या तो आपके जीवन में परमेश्वर रहेगा It will be the Lord in your life या पाप रहेगा। or sin in your life. समझ रहे? अगर परमेश्वर है If it is the Lord, तो पाप नहीं है, then no sin. और अगर पाप है If there is sin, तो परमेश्वर नहीं है। then no Lord. एक ही रहेगा आपकी Only जिंदगी one में। will stay. अगर शैतान है If there is devil, तो केवल शरीर, only the body, संसारिक चीजें the worldly things आपके जीवन में रहेंगी। will be in your life. ये शैतान की चीजें हैं, These are the things of the devil. लेकिन अगर परमेश्वर होगा But if there is the Lord, तो आपका पूरा समय your whole time परमेश्वर के कामों में, will be with the Lord. परमेश्वर की बातों में In the और Lord, परमेश्वर में लगा रहेगा। with the Lord. हालेलुया। फिर Hallelujah. आपको संसार के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, You will have no interest in the आप things of अपना the world. अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ You will बिताना give your चाहते हैं। time to the Lord. शैतान, संसार और शरीर, Devil, the world, and the body. ये तीनों कनेक्ट है। They all three are connected. मैं कई बार सोचती हूँ कुछ वर्ड जो है, शैतान ऐसे, संसार ऐसे, शरीर, समझ रहे हैं, सब ऐसे ही चलता है। पाप, परमेश्वर, या तो पाप रहेगा या परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर की सामर्थ आपको चलाती है। The power of the Lord leads you. आप जानते हैं आपका धन आपको बचा नहीं सकता, You know your money cannot save you. परमेश्वर आपको बचा सकता The है। Lord can save you. किस चीज पे भरोसा करना है, धन पर या परमेश्वर पे? Whom will you trust on? The आज Lord. हमारा भरोसा कहाँ पर है? Where is your trust? परमेश्वर कहता है यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा मैं तुझे लज्जित नहीं होने The दूंगा। word says, if you put your trust in me, you will not be ashamed. अगर मैं तेरी ओर हूँ तो कोई तेरा सामना नहीं कर If सकता। I am on your side, I can be against you. देखो, जिसके जीवन में परमेश्वर है In whose life there is the Lord, वो महान है, He is great. जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं In है whose life there is no Lord, वो मूर्ख है। he is foolish. बाइबल में लिखा है मूर्ख ने अपने मन में कहा The word says the foolish thought in his heart कोई परमेश्वर that there नहीं। is no God. ओ भाई, अपने दिमाग पे भरोसा करो, दो पैसे होंगे, काम आएंगे, जिंदगी चलेगी, है ना? क्या प्रभु खाने को देगा क्या? Trust your mind, do your work,
will God give us to eat? ये मूर्ख की बातें हैं। These are the things of a foolish person. अपने ऊपर काम करो, अपनी लाइफ सेटल करो, अपनी जिंदगी बनाओ। परमेश्वर ऐसे नहीं कहता। Work on yourself, settle yourself, make yourself. समझ आए? ये मूर्खता की बातें हैं। The things of foolishness. अगर परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में है, If there is the Lord in your life, 40 साल जंगल में भी वो परमेश्वर तुम्हारी सुरक्षा करेगा। 40 years in the desert He will provide for you. ये बातें आपको देखनी है, संसार की बातें कैसी होती है और परमेश्वर की बातें कैसी होती You है। need to understand the words of the world and the words of संसार के Jesus. लोग आपको शरीर में चलना सिखाएंगे। The people of the world will make you live in the body. एक परमेश्वर का जन आपको परमेश्वर के मार्ग पे चलाएगा। And the righteous person will lead you into the path of the God. और हम होते धर्मी हैं We are righteous, और चलना संसार की तरीके से चल रहे but want to copy the ways of the world. और समझ नहीं आता इधर का चलूं इधर चलूं। And we do not know I walk here or there. युद्ध तेज होते जाते हैं। The battle is fierce now. मैं आपको सच बता रही हूँ, I want to tell you now, आप परमेश्वर के साथ with the Lord, शरीर में नहीं चल सकते। you cannot walk in flesh. आपकी लाइफ में कभी पीस नहीं रहेगी। There will be no peace in your life. अगर आप धर्मी हैं, If you are righteous, हर दिन के लिए आपका भरोसा परमेश्वर पे होगा। every day you will put your trust in the हर Lord. बात में आप परमेश्वर को आगे रखेंगे। In everything you will हर put बात में आप God in परमेश्वर front. की प्रसन्नता को देखेंगे In everything you will please the Lord. और आपके अंदर एक गहरी शांति होगी। And there will be peace in your और life. परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपका आदर सम्मान प्रेम बढ़ाता जाएगा। And God will increase you. आज परमेश्वर चाहता है Today the Lord wants आपके जीवन में प्रभु that in your life the पहला Lord स्थान पाए। becomes priority. जब हम पुराने नियम में देखते हैं, In the Old Testament we read, बहुत सारे राजा पुराने नियम में हैं many kings are there. और परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा था। And the Lord's Spirit was showing me. हम राजा फिरौन के विषय में पढ़ते We हैं, read about the King Pharaoh जो इजराइलियों को मिस्र में गुलाम बना के रखा, जिसने who made people slaves in Egypt. पूरे संसार में मिस्र का राज था उस टाइम पर। In whole world there was Egypt's ruling. पूरे विश्व में फिरौन का राज था। In the whole world the Egypt was ruling. पैसा धन आर्मी सब कुछ था उसके The पास। money, the army, they had it all. लेकिन But मूसा अकेला था, Moses was alone रेगिस्तान में था, in the desert, जंगल में था, in the forest. दुनिया की कोई भी चीज उसके पास नहीं थी, He had no worldly blessings. लेकिन केवल परमेश्वर उसके साथ था। But he had the Lord with him. उसने दुनिया के धन को छोड़ के परमेश्वर को खोजा He rejected the riches of the world and chose the Lord. और जब उसने परमेश्वर को खोजा, And when he seeked the Lord, परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ दी। God blessed him with his power. मूसा अकेला Moses was alone. और फिरौन पूरी दुनिया का राजा। And Pharaoh was the king of the whole world. और अब एक राजा मूसा के साथ चल रहा है, One king was with Moses, जो दिखाई नहीं दे रहा था, who was not being able to see. लेकिन मूसा के आगे चल रहा था। But he was working before Moses. उसने कहा मैं अपना एक दूत तेरे आगे भेजूंगा He said, I will send my angel in front of you, जो तेरी रक्षा करेगा। who will protect you. और वो अकेला जा रहा है, And he was going alone. हारून उसके साथ है He was with Aaron. और वो दुनिया के राजा का संसार के राजा को बोलता है, And he told the king of the जिसके world, पास पूरे वर्ल्ड का धन था, he had all the riches of the world, the Pharaoh. कहता मेरे लोगों को छोड़, He said, leave my people, मेरे लोगों को छोड़। leave my people. दुनिया का राजा अब हंस रहा, हा 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 हा। And the king of the world is laughing now. हाँ? तू कौन है? तू That who are you? कौन है तेरा परमेश्वर? Who is your Lord? मैं नहीं जानता। I do not know. दिमाग मत खराब कर, बहुत काम है, चल इधर से। Do not dismay me. There's a lot of work. अभी ये राजा बोल रहे हैं, But the king is saying now. हाँ मूसा निकल गया, Moses went away. अब कौन बोल रहा है? Now who's speaking? स्वर्ग का राजा The king of heaven, जो मूसा के साथ था। who was with Moses. पूरी नदियां लहू बहा दी, The whole river became blood. ऊपर से आग बरसा दी, Fire came from heaven. पूरी हरियाली को टिड्डियां चट कर गई, There were locusts that had come up and पूरे eaten up the घरों में grain. मेंढक भर गए There were frogs all around. और फिरौन के सारे पूरे
मिस्र के पहलोटे मर गए। The firstborn of all Egypt, including the animals, died away. लेकिन दुनिया में अगर हम देखें तो बेचारा मूसा एक चोगा पहन के अकेला चल रहा है, But in the worldly way, we see Moses was alone, और यहाँ पर दूसरा विश्व का राजा फिरौन, and against him was the king of the world, the Pharaoh. दुनिया की हर चीज उसके पास। He had everything in his life. आप जानते हैं कितनी बड़ी आर्मी थी उसके पास। You know how big army he had? 4000 साल पहले वो रथ थे उसके पास। He had big equipments. क्या हुआ? What happened? धन ने बचाया, Did money save him? पावर ने बचाया, Power save him? और उसने बोला तेरा परमेश्वर ही राजाओं का राजा है, मैं झुकता हूं, ले जा अपने लोगों को। Pharaoh said, "Your Lord is the Lord." ये है परमेश्वर की सामर्थ। This is the power of the Lord. और सामने लाल समुंदर, There was the Red Sea in front. प्रभु कहता चिंता क्यों करता है, He said, "Why are you? चल लाठी Worried. बढ़ा आगे। Put your stick in front." लाल समुंदर दो भाग हो गया। And the Red Sea parted. 40 साल ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते फटे, और बाइबल कहती है और ना उनमें से कोई कमजोर और निर्बल था। For 40 years, their clothes didn't tear away, their shoes did not shorten, nor did anybody become weak. दुनिया का राजा दिखता है, The king of the world is seen, फिर भी बचा नहीं सकता। but still cannot save. हमारा राजा दिखता नहीं है, Our king is not seen, पर उसके काम दिखते हैं, but his works are उसकी seen. सामर्थ दिखती है, His power is seen. और वो कहता है मैं तेरी ओर हूँ। And he says, "I am with you." इसलिए आज आपका भरोसा कहाँ पर है? Today, where is your trust? संसार के धन के ऊपर, On the world, दुनिया की पावर के ऊपर, on the power of the world, या उस परमेश्वर के ऊपर? or on the king of the अगर उस परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा है, If your trust is on the Lord, वो आपकी ओर है, He is on your side. आपको डरने की जरूरत नहीं Do है। not be dismayed. आपके एनिमी कभी आप पे प्रबल नहीं होंगे यीशु के Your नाम से, enemies will never prevail over you. क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ता है। The Lord will fight for you. परमेश्वर आपका है, The Lord is yours. कैसे साबित करोगे? How will you prove? आप परमेश्वर के हो, You are of the Lord. ये आपको साबित करना है, You have to prove. और वो आपके कामों से हो जाता है, And it happens through your works, आपके बोलने से हो जाता है, through your words, आपकी हरकतों से हो जाता through your है। actions. कि आपका भरोसा परमेश्वर पे है But are you trusting upon the Lord या संसार के ऊपर है? or on the world? परमेश्वर के ऊपर है On the या gospel आपके धन के ऊपर or है? on your money? ये आपके चलने से पता चल जाता है। We come to know through your walk. एक बड़ी भीड़ जा रही थी मूसा के साथ। A big number of people were going with Moses. परमेश्वर जानता था कौन मेरे साथ है, God knew who was with him, कौन मेरा भय मानते हैं, who feared me, और कौन मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। and who are against वो murmuring उनका against me. कुड़कुड़ाना सुनता था, The Lord heard their murmuring, और परमेश्वर उन लोगों को अपने उन लोगों के बीच से नाश करता रहा। and the Lord destroyed them. धर्मियों की among भीड़ them. में पापी स्थिर नहीं रह सकते। In the righteous people, the sinners cannot stay. भजन संहिता 1 में लिखा है ये, It is written in Psalms 1. धर्मियों की मंडली में पापी स्थिर नहीं रह पाएंगे। The righteous cannot stay in the company of the righteous. The evil आज cannot stay. आपको अपने आप को बताना है, You have to tell yourself, तेरा भरोसा किस पर है। your trust is upon whom? जब हम बाइबल पढ़ते हैं When we read the word, राजा नबूकदनेस्सर के विषय में, the king Nebuchadnezzar, दानियल 4 उसका 28, Daniel 4:28, आप जानते हैं उस समय पर बेबीलोन का राज्य था। there was the kingdom of Babylon. पूरे विश्व के ऊपर बेबीलोन का राज्य था। In the whole world there was Babylon. पहले ऐसे स्टेट नहीं होते थे, देश नहीं होते थे। First there were no states as such. एक ऐसा किंगडम होता था जो पूरी दुनिया के ऊपर रूल करता था। There was such a kingdom that ruled over the whole world. ऐसा ही मिस्र का राज्य था, Such was the kingdom of Egypt. ऐसा ही बेबीलोन का राज्य था, Such was the kingdom of Babylon. ऐसी मादी फरीसियों का राज्य था, Such was Median Persian. यूनान का राज्य था। Such was the Greece kingdom, पूरी दुनिया के ऊपर उनका राज होता था। who had the
ruling over the whole और world. ऐसा ही एक राजा था जिसका नाम नबूकदनेस्सर था। So such was the name of the king Nebuchadnezzar. और एक दिन वो राजा One day the king, अपने घर की छत पे टहल रहा था he was walking on his balcony और उसने कहा, अपनी शहर पनाह को देखा, and he saw his city and the kingdom he made. कहता क्या मैंने नहीं बनाया ये सब? Have I not made it? उसका मन फूल गया। And he became full of pride. उसी समय आकाशवाणी हुई, And that very moment the voice came from heaven. अब मैं बताऊंगा कि ये तुझे सौंपा किसने है। And I will reveal it to you. Who बाइबल gave you कहती this है, जब kingdom? तक स्वर्ग से ना दिया जाए Till the time you don't get it from heaven, कोई पा नहीं सकता। you cannot receive it. और बाइबल में लिखा है The word says, 4:28 हम पढ़े पहले, ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वो बेबीलोन के राजभवनों की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है is not this great Babylon, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है। अब जानते हैं, जो धन बिना परमेश्वर के आता है that richness that comes without the Lord, वो आपको नाश करेगा, it destroys you. वो आपको घमंडी बनाएगा, It will make you prideful. वो आपको परमेश्वर के खिलाफ करेगा, It will make you go against the Lord. वो परमेश्वर के भयानक हाथों में आपको मरने के लिए छोड़ेगा। It will give you into the hands यहाँ पर for to be destroyed. ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा And like bulls you will be eating grass. और 7 काल तुझ पर बीतेंगे And there will be 7 ages. जब तक तू जान ना ले 7 years till the time you do कि not परम understand प्रधान that the great Almighty Lord मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है is the one who rules over the kingdom. और जिसे चाहे उसे देता है। And whomever he wishes he gives it to them. उसी घड़ी And that very moment, ये वचन that word नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। was fulfilled for वे Nebuchadnezzar. मनुष्य में से निकाला गया He was taken out of और बैलों Nebuchadnezzar. के समान घास चरने लगा And he took grass like oxen. और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, And his body used to take water from precipitation. यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से So that his hair through the eagles, और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए, so that his nails were like that of birds who used जिसके to चारों sleep on तरफ हाँ इतने सारे सेवक उसका सारा दिन उसका शरीर का ध्यान रखते थे, good beds. He had so many servants all around, जिसके मुंह से शब्द निकलता था और पूरा होता था, and from whose mouth there came a word and it was जो fulfilled. पूरी दुनिया के धन का मालिक था। Who was king of the whole world? जब ऐसे राजा ने घमंड किया, The king that he was full of pride. तब वो राजाओं के राजा ने बताया कि राजा कौन है। The king of heaven told who was the king. आज हम बहुत सोचते, अरे वो फलाने की सरकार है, उसकी सरकार आ जाएगी, वो बन जाएगा, फिर हमारी चलेगी। राजाओं की जिंदगी परमेश्वर के हाथों में रहती But we है, think that he has a government if the इसीलिए other comes. किसी के लिए घमंड मत करना, Do not be prideful about anybody, पर सत्य के साथ खड़े रहना। but stand with the truth. जो व्यक्ति सत्य है, Who is with the truth? जिसके अंदर परमेश्वर के गुण हैं, Who has the things of the Lord? वो व्यक्ति कोई भी क्यों नहीं है, No matter who he is, उसके साथ खड़े रहना। stand firm with him. लेकिन अगर आपको लग रहा है पावर और पैसा है इस व्यक्ति के पास, And if you think there is power and money, और आप उसके पावर और पैसे के कारण उसके साथ and if you are हैं, with a person for power and money, जब वो जाएगा and when it goes, तुम भी जाओगे। so you will also go. इसीलिए किसी मनुष्य के विषय में घमंड ना करें। So do not be prideful about anything. घमंड करना है परमेश्वर के विषय If में you want to be करें, prideful, be it for the Lord, कि राज्य वही करता है। because he is the kingdom giver. और ये राजा, And this king, इसके नाखून बढ़ गए चिड़ियों की तरह, his nails were increased. इसके जो
24 घंटे सर में मसाज होती थी, वो पूरा बाल बढ़ गए His hairs were all काबों के grown up समान, like animals. पूरा शरीर जो मखमली कपड़ों से लदा होता था वो ओस में भीग रहा है, Who had clothes on और बैलों was के समान घास खा रहा outside. है। He was like an oxen eating grass. ये धनवान का रिजल्ट है। That was the result of the rich. और एक हमारा दाऊद था And there was one David जो जंगल में रहता था, who used to live in the forest, लेकिन परमेश्वर के साथ रहता but था, lived with the Lord, प्रभु की आराधना करता worshipped था, the Lord. जिसे कोई जानता भी नहीं था। Nobody knew him. वो भी बेचारा ठंड में गर्मी में अपनी पिता की भेड़ों को पाल रहा था, In summers, winters, he was taking care of the लेकिन sheep. धर्मी व्यक्ति था। A righteous person. परमेश्वर ने उसे उस जंगल से उठाकर And through that, from that woods, राजा की कुर्सी पे बैठा दिया the Lord made him to और sit on कहा, the अब throne. तू मेरी भेड़ें संभाल। And he said, take care of my sheep. वो परमेश्वर है, He is the Lord. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें राजाओं की गद्दियों पे बैठाने की Your सामर्थ God रखता है। will take you over the thrones of kings. और अगर अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपने पैसे और अपने चीजों पे घमंड करोगे If today you have trust upon your money and तो your वो power, नबूकदनेस्सर की तरह जंगल में घास चराने की सामर्थ भी वही रखता है। Nebuchadnezzar, who was eating grass like dogs, इसलिए किसी चीज पे घमंड ना करें। do not be prideful about anything. आगे से पढ़ेंगे हम। उन दिनों के बीतने पर जब राजा के साथ ये 7 साल बीत गए जंगल में उसके साथ, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। फिर क्या हुआ? बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। जब पैसा आता है ना तो बुद्धि बिगड़ जाती है, फिर ज्यों की त्यों नहीं रहती वो। When money comes, your mind wanders away. उसके ऊपर घमंड चढ़ जाता There है, is pride that comes. आंखें चढ़ जाती The हैं, eyes go up. चाल बदल जाती Your है, walks change. जबान बदल जाती है, Your words change. फिर वो अपने आप इंसान ही नहीं रहता। He does not stay a man. बाइबल कहती है जब राजा के ऊपर 7 साल दुख आया The word says, pain तब came for 7 उसकी years. बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। His mind wandered off. बोलो परमेश्वर परमेश्वर मेरी बुद्धि Oh Lord, सदा ज्यों की त्यों रहे। सदा ज्यों की त्यों रहे। परमेश्वर परमेश्वर हर बुद्धि बिगाड़ने वाली चीजें बुद्धि बिगाड़ने वाली मेरे जीवन से दूर कर दे। मेरे जीवन से दूर कर। परमेश्वर मैं इंसान हूँ इंसान जिसे तूने बनाया है तूने बनाया, और मैं अपने आप को इंसान ही समझूं अपने आप को इंसान और सदा तेरे अधीन रहूं। तेरे मेरी बुद्धि बिगड़ ना जाए, बुद्धि बिगड़ना, मेरा चाल चलन बिगड़ ना जाए। चलन बिगड़ना। प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे दया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। पहले किसकी प्रशंसा कर रहा था? हाँ? अपनी। first whom was he क्या talking about? Himself. मैंने नहीं बनाया, Have I not made it? ये मकान मैंने नहीं बनाया, Have made ये गाड़ी मेरी ताकत से आई this है। car came with my money. अगर मैं ना करूं कोई काम नहीं होगा। If I don't do it, no work will happen. आज जब जिन लोगों का भरोसा अपने ऊपर है ना उनकी बैंड बजाएगा प्रभु Those अच्छे who से। trust upon themselves, God will come against them. अपना भरोसा अपने ऊपर नहीं खुदा के ऊपर Do रखो। not trust upon riches of उसने आपको दीन और नम्र जानकर आपके हाथों में एक जिम्मेवारी सौंपी With है all the humility, God has given His responsibility into your hands, ताकि आप सब लोगों का भला कर सकें। so that you can be a blessing for others. आप नहीं भी होंगे तो भी सारी दुनिया चलती रहेगी। Even if you are not there, the world will keep moving. इसलिए मैं मत करा करो 24 घंटे। That do not be concerned about you only. परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर की मैं को निकाल दिया। God took out the eye from Nebuchadnezzar's life. क्या बोल रहा था पहले? मैंने बनाया, He said, I made this मेरे प्रताप के लिए बनाया गया। for my glory. लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? Now what is he saying?
परमेश्वर परम प्रधान धन्य है। The Lord is Hallelujah. blessed. उसकी ओर आंखें उठाई अब Now he has put his eyes on the और Lord. उसकी स्तुति महिमा करने लगा। And he began to worship the Lord. तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। Then I gave thanks to the Lord. पहले Almighty. किसको धन्य कह रहा था? अपने आप को। अब किसको धन्य कह रहा है? अपने बनाने वाले को। हाँ, उसके बाद परमेश्वर की सामने तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपर क्या लिखा है? उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। दुनिया के राज्य आएंगे और जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य युगान युग तक बना रहेगा। The kingdom of the Lord will remain. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए अपना भरोसा अपने धन पे मत रखिए। Do not put your trust on आज your own आपके riches. पास बहुत धन नहीं है, लेकिन आपके पास परमेश्वर है। You do not have many riches, but you have the मैंने Lord. बोला वो दुनिया का स्वामी अगर आपकी ओर है, The master of heaven is in your वो side. आपको राजा की कुर्सी पे बैठाने की सामर्थ्य रखता He है। can put you on the seat of kings. उसको प्रसन्न करें, Please him. उसी में आपका ध्यान लगा रहे। In him let your mind be. और फिर वो कहता है, Then he says, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। वो समझ गया राज्य प्रभु का है, महिमा उसकी है। और एक जगह पर लिखा है, अगर हम 5:20 पढ़ो, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई। आज बहुत सारे लोगों का जब मन फूल जाता है ना, तो उनकी आत्मा कठोर हो जाती है। फिर उनको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, फिर उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन फूल जाता है। whose mind is uplifted, फिर वो who सुनते come नहीं in किसी pride की और are उनकी not आत्मा able to कठोर हो hear the जाती word, है। and their hearts are hardened. यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो समझ रहे हैं? गया। उसका मन पशुओं का, जो इंसान परमेश्वर का भय नहीं मानता, उनका मन पशुओं जैसा हो जाता, जानवरों की तरह, जो सिर्फ खाने और पहनने की सोचते हैं। Do not have the fear of the Lord, their hearts become like that of animals. और आगे लिखा है, वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भींगा करता था, जब तक कि उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता समझ है। रहे हैं? जिसको चाहता है उसको गद्दी देता है। Whosoever he wills, he appointed. मत सोचो ये बहुत बड़ी है, ये है जी, ऐसा हो जाएगा जी, हम ऐसा हो जाए। इस अगर भय मानना है, उस परमेश्वर को मानो। If you want to have the fear of the अपने Lord. धन पे भरोसा मत करो। Do not trust your riches. हाँ, कई लोगों के विषय पे हम बड़ा घमंड करते हैं, थोड़े दिनों बाद वो व्यक्ति का नामो निशान नहीं होता। In some persons we take pride, and after some time we see they are no more. कई बार हम अपने धन पे घमंड करते हैं, And we have trust upon money. थोड़े दिनों बाद धन भी खत्म हो जाता है। After some time the riches go away. लेकिन अगर आप परमेश्वर पे घमंड करेंगे, But if you trust in the वो Lord, आपको कभी ना छोड़ेगा, he will never leave you. वो आपको कभी ना त्यागेगा। He will never forsake you. ये अन्य जातीय राजा था नबूकदनेस्सर, The Gentile king, ये परमेश्वर को जानने वाला नहीं था। he did not know the Lord. तब भी परमेश्वर ने इसको बताया कि राज्य मैं करता But हूँ। still the Lord told him that I am the one who rules. जब हम एलीशा के विषय में पढ़ते हैं, When we know about Elisha, जब अराम के राजा ने एलीशा के पहाड़ को घेर लिया, when the king of Aram, he surrounded Israel. क्योंकि जो राजा अपने बंद कमरे में, अपने बेडरूम में जो बात करता था, What the king talked in his bedroom, वो बात परमेश्वर एक पहाड़ पे बैठे हुए परमेश्वर अपने दास को बता देता था। the same things the Lord revealed it to Elisha who was sitting on a mountain. वो परमेश्वर का दास इजराइल के राजा को बता देता था किधर से तेरे ऊपर अटैक होने वाला है। And the same thing was told to the king of Israel that from this place attack will come. और
वहां पर पहले से ही इजराइल की सेना चली जाती थी। राजा बहुत हैरान होता था And the king was astonished. कि मेरे अलावा किसी को ये बात नहीं पता थी। कौन है ऐसा भेदिया जो मेरी सारी बातें दुश्मन की सेना को बताता Who is है? the one who shares all our secret with them? तो किसी ने खबरसार निकाली So it was taken out. और बताया कि राजा एक भविष्यवक्ता है इजराइलियों का, King, there is a prophet. जिसका नाम अलीशा His name है, is Elisha. और वो उस पहाड़ पे रहता He है, stays on the mountain. और परमेश्वर उनका परमेश्वर उनको सब बताता है, And his Lord tells him it और all. वो हमारी युक्तियों से बच जाते हैं। And that's how they are saved from our plans. तो राजा ने युक्ति बनाई, And the king made a plan. अलीशा को ही मारो, Kill प्रभु Elisha. के नबी को मार दो। Kill the prophet. तो उन्होंने पूरा पहाड़ घेर लिया चारों तरफ So से, they surrounded the whole mountain. पूरा पहाड़। The whole mountain. कहाँ से भागेगा एलीशा अब? From where will he go? अब एलीशा आराम से प्रार्थना कर रहा है, So Elisha was praying now. प्रभु के साथ बिजी है, He was busy with the. और उसका एक सेवक था, And there was a servant वो of him. बाहर जाके सुबह सुबह आंखें खोलता है, He opens his eyes. उसको लगता है सपना देख रहा हूँ, He thought he's seeing a dream. फिर इधर को देखता है, He looks to the other corner. फिर इधर को देखता To the other है, corner. फिर उसकी आंखें खुल जाती है, And his eyes open. वो डर जाता है And he is scared. कि पूरा पहाड़ के चारों तरफ आराम के राजा की सेना थी, The whole mountain was surrounded with an army. और वो पूरी आंखें खुल जाती है उसकी। His whole eyes open up. वो प्रार्थना में ही उठा देता है अलीशा को, स्वामी स्वामी, He was praying and he woke अब up हमें कोई नहीं Elisha. बचा सकता, Nobody can save us now. राजा ने पूरा पहाड़ घेर लिया The है, king surrounded the mountain. अब तो हमारा आखिरी दिन Now it है, is the last day. अब तो हम मर जाएंगे। We'll die now. अलीशा जिसकी आंखें खुली थी, Elisha, whose eyes were open, जो स्वर्गीय चीजों को देख who पाता could था, see the heavenly things. उससे बोला परमेश्वर, He said, Lord, जैसे मेरी आंखें खुली हैं, like my eyes opened, मेरे सेवक की आंखें भी खोल दे। Lord, let the eyes of my servant be opened. और थोड़ी देर बाद And after some time, उसकी आंखें खुल जाती है, his eyes open up. फिर से देखता He है, sees again. अब उसको वो रथ नहीं दिखाई दे रहे, Now no longer he sees the other उसको ones. अग्नि में रथ और बड़े बड़े दूत दिखाई दे रहे He could हैं, see chariots and horses of जो fire, उस राजा से भी की सेना से भी ज्यादा है। who were more than the army of और kings. फिर वो दूसरी साइड देखता He है, sees that other corner. प्रभु की सेना से वो पहाड़ घिरा हुआ The था। armies of heaven, the chariots of fire were there. फिर राजा क्या करता है, What does the king do? 50 लोगों को तलवार दे के भेजता है, He then again sends 50. जाओ मार के आओ एलिया को। Go and kill Elijah. वो एलिशा का बॉस था, और वो वहां पे जाके वो मारने आते हैं एलिशा को पहाड़ पर। जैसे ही आते हैं, एलिया हाथ करता है, आग स्वर्ग से गिरकर 50 को नाश कर देती है। Fire came down and burns the 50 soldiers. फिर राजा 50 को और भेजता है। Again he sends 50. इस बारी भी वो आते हैं, अरे राजा चिंता मत कर, 1 मिनट लगाएंगे, ये है ही क्या, ये प्रभु के दास बने फिरते हैं, कुछ नहीं है ये, बस एक मारूंगा मैं, खत्म कर दूंगा इसको। राजा चिंता ही मत कर, टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। दुष्ट के जो चमचे होते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं, राजा चिंता मत कर, तू हमें ना तेरे साथ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खत्म कर देंगे, आई क्या हमारे सामने। और वो भी ऐसे ही, राजा चिंता मत कर इस बारी। फिर गए 50। Again 50 went. हाँ, अलीशा क्या है, इधर आया। अलीशा आग उतरे, भस्म कर Fire प्रभु came. इनको। फिर 50 भस्म। All 50 died. अब तीसरी बार फिर आ गए कुछ, Third time again they came. ये होते हैं कुछ ना, जिनके अंदर कुछ कुछ चलता रहता है, क्या हुड़दंग चलता रहता ना, हम कुछ है, हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बताएंगे भी हम कुछ है। They think from inside that we are something and we will जो do. शरीर में चलते हैं और अपने आप को कुछ समझते हैं, And they think जिनके in अंदर their- ईश्वर का भय नहीं है। who have no fear of the Lord. और ऐसे फिर आए 50। And again 50 came. अब की बार ये 50 बोले, 2 का तो काम खराब हो गया, So they thought that who came, they all died. अब जाना तो पड़ेगा, राजा की आज्ञा We है, have to go, the king has said. पर मरना तो नहीं चाहते। But if we do not want to वो die, जाते सारी, स्वामी they go to Elijah हम and say, जानते हैं तू Master, प्रभु का दास we है, know that you are the परमेश्वर the तेरी Lord's servant. सुनता है, God hears you. हम पे दया कर। Have mercy on us. हम नौकरी तो उसकी करते हैं,
We पर serve- जिंदा उसकी रहमत से है। हालेलुया। We serve the King, but we are of the Lord. दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं है, No matter who, वो खुदा के रहम the से person जिंदा is, है। he is alive with the mercy of the Lord. इसलिए अपने आप को कुछ समझिए मत। That is why do not be prideful. ये सांस ना जो ऐसे ऐसे दिल धड़कता ना, 1 मिनट में ऐसे ही चिपक जाता है, फिर दोबारा ऐसे होता ही नहीं है, The फिर heart हार्ट that अटैक हो जाता है, मर जाता है बंदा। contracts, it does not come back again the same. इंसान हो, उसने बनाया है, इंसान बन के रहो। Remember, you are man and stay like man. उससे ऊंचा कुछ बनने की कोशिश करेगा, वो वहां लाएगा जहां पे औकात दिखा देगा पशुओं की तरह। Do not try to become over the Lord. इसीलिए परमेश्वर ने कहा धर्मी बन, Become righteous, धनवान नहीं। not rich. धनवान सोचता है मेरा पैसा मुझे बचा लेगा, The rich thinks the money will save me. लेकिन धर्मी कहता है मेरा खुदा मुझे बचा लेगा। The righteous says the Lord will save me. और जहाँ पे भरोसा होगा वही तुम्हारे मुंह से स्टेटमेंट निकलेगी। Where your trust is, the same will come out from your mouth. इसलिए अपने खुदा पे घमंड करें और भरोसा करें, Love the Lord, trust upon Him. वो आपको मिटने नहीं देगा। He will not let you die वो of it. कहता है जीवन की पुस्तक में तेरा नाम लिखा Your name है, is written in the book of life. जब तक मैं जिंदा हूँ, हाँ, वो अनंत काल का पिता कहता है तू भी जीवित रहेगा। When I am alive, you will तेरा also नाम be. लिख लिया है क्योंकि तूने मुझे प्रसन्न Your किया name is written in है। the book of life. हालेलुया। हालेलुया। रो लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपने आप को तोड़ लो। Cry here, break yourself here. ऐसा ना हो कि खुदा तुम्हें तोड़े। It should not be that Lord breaks you. अपने आप टूटोगे तो अच्छा है, It's good that you break on लेकिन your जब own. खुदा तोड़ेगा ना तो पहले पशुओं की तरह जिंदगी दे देगा तुम्हें। But if the Lord breaks, it will be ना like चल पाओगे, ना दौड़ Nebuchadnezzar. पाओगे और ना बोल पाओगे। No walking, no running, no. सारी मैं निकाल देता वो एक ही दिन He में। takes out all I from you. इसलिए दीन हो जाओ, Become humble. नम्र हो जाओ। Become humble. हालेलुया। Hallelujah. एक और राजा था हिजकिया, Hezekiah, पूरी शानो शौकत, पूरा राजपाट उसका। he had all glory, all kingdoms. परमेश्वर ने अपने दास यशायाह को भेजा, God sent Isaiah. जा इसको Go. बोल इसकी जिंदगी खत्म, Your life is gone. थोड़े दिनों में मर जाएगा। In some time you will die. अब आप एक चीज ध्यान करो, Always remember one thing. कितने भी बड़े राजा क्यों नहीं हुए, No matter how big kings were, परमेश्वर ने उनके ऊपर नबी रखे। God had prophets over them. अगर राजाओं के ऊपर नबियों की जरूरत थी If there were prophets over the kings, तो तुम्हारे ऊपर कोई अगवा नहीं चाहिए। so do you think that there is nobody मैं over जो you? मन करे वो करूं, I will do whatever I want. मुझे कोई रोके टोके ना, Nobody says मुझे anything कोई to me. करेक्ट ना करे। No. ये जो जनरेशन है ना, जो अभी की जनरेशन This generation, सबसे दुष्ट जनरेशन है ये, the evil of all, सबसे दुष्ट, जो केवल स्वार्थ और अपने लिए जीती है। who is selfish and lives for itself only. उनको सारी मॉरल वैल्यू खत्म कर दी आज की जनरेशन ने। Lost all the moral values. ए मम्मी क्या है, ए पापा क्या है, No respect for parents. औकात भूल गए। ये नूह के समय पे जो जनरेशन थी ना, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ उनके मन में पैदा होता था वो बुरा होता था, The generation of Noah, same. वो हाँ। जनरेशन, ये अभी की जनरेशन इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, It's same now, full of evil, जो केवल सेल्फिश होके जीती है। who thinks about themselves only. मैं आपको आज एक चीज बता रही हूँ, जो केवल आपके शरीर के विषय में सोचते हैं Who think about your flesh वो only तुम्हें नरक भेजेंगे, will take you to hell. और जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे करेक्टर और तुम्हारे चाल चलन और तुम्हारी जीवन को सही करेक्शन में लेके जाएंगे, Who think about your spirit and character with वो तुम्हें correction अनंत काल में पहुंचा will देंगे। take you to eternal life. इस चीज को गांठ मार लो आज। Tie जो your केवल mouth. शरीर की चिंता, हाँ मेरा बेटा, मेरे Mind अरे, the world. हाँ, तू कमजोर हो गया, You are weak. तू को। You are no longer what you should be. मैं एक ऐसी माँ हूँ जो मैंने कभी भी अपने बच्चों को फिजिकली प्रेम नहीं किया। I am such a mother, like now also I do not love my children physically. बहुत प्यार करती हूँ मैं, I love my children, लेकिन मैंने कभी इनकी गलतियों से प्यार नहीं किया। but I did not love their mistakes. इनकी
बकवास से प्यार नहीं किया मैंने। I did not love their evilish doings. मुझे तुमसे प्रेम है, I love you, पर परमेश्वर के वचन के टूटने से मुझे नफरत है। but I am against where the word is अगर breaking. तुम परमेश्वर के साथ चलोगे If you walk with the Lord, तो मेरा प्यार अंदर से उमड़ेगा। my love will come out from inside. हमें वो रिलेशन नहीं चाहिए We do not want those जो relations केवल तुम्हारी फिजिकल चिंता करते हैं who love you और about तुम्हारी your आत्मा को नरक में डालते हैं। and care about you on the physical, but taking your spirit to hell. इंसान शरीर से नहीं बनता, That man is not made out of इंसान flesh. कैरेक्टर से बनता A है। man is made with character. इंसान अपने चाल चलन से बनता है, He is made with his work, अपनी आदतों से बनता है, through his habits, अपने बोलने से बनता through है, his speaking, अपने कामों से बनता है। through his works. हम बाहर से कुछ बन जाएं और अंदर से खोखले रहें। We are something on the outside we become, but inside we are hollow. जो पेड़ अंदर से सॉलिड होता है, The tree that is solid from उसपे inside, फल आता है, there is fruit on that. पर जो अंदर से खोखला होता But है, that is on the hollow, on the आने वाले outside. टाइम में कीड़े खा जाते हैं और वो जला दिया जाता है। Insects eat it up and it dies away in fire. आपको अंदर से खोखले नहीं बनना, You do not have to become hollow from आपको inside. सॉलिड बनना है, Solid from ताकि inside. आपके ऊपर फ्रूट आ सके। There is Hallelujah. fruit on you. हालेलुया। Hallelujah. आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।